Hello to all class 10 students. Class 10, we are going to continue with our chapter, lesson number 3, theory of supply. And today we are going to finish this chapter. We're going to finish it and you people are going to show me your notes. And today we're going to start with a movement along the supply curve. Right? If you remember in demand curve also we read about movement along the supply curve. यहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे, movement पढ़ेंगे, उसके बाद shift पढ़ेंगे. Right? So movement के बारे में पढ़ते हैं. What is movement along the demand curve? Now always remember that when we talk about movement, जो movement के बारे में बात करते हैं तो movement is of two type, extension and contraction. Movements दो तरह के होते हैं, extension and contractions. Second important point, movement take place because of price. Very very important thing. ये दो चीजें याद रखोगे तो बहुत important है, बहुत आधे से ज्यादा चीज तुम्हारी समझ में यही आ जाएगी. So when we talk about movement, हम अभी सिर्फ मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शिफ्ट राइट नाउ. शिफ्ट को किनारे रखेंगे, मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. तो मूवमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एक्सटेंशन मतलब किसी चीज का बढ़ना एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज का घट जाना. नाउ यहाँ पे अगर एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो किस चीज का हो रहा है? ऑब्वियसली सप्लाई का. हम सप्लाई का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम एक्सटेंशन, यहाँ पे सप्लाई के बढ़ने की बात कर रहे हैं और सप्लाई के घटने की बात कर रहे हैं. तो जब हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो वो जब प्राइस की मतलब अगर सप्लाई बढ़ रही है या घट रही है, इफ द सप्लाई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ड्यू टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, this is known as movement. Right? Always remember, movement takes place just because of price. Price is the only reason for movement. Movement is of two type, extension and contraction. Extension मतलब बढ़ना, contraction मतलब घटना. So let's start it. So if we just talk about the supply, let's I'll make a schedule here first. I'm preparing a schedule out here. This is your price, right? And this is your quantity supplied. Quantity किसकी? Supply की quantity है ये, right? Price है 10, 20 हो गया फिर, then 30 and then 40. So supply is 100 units, 200 units, 300 units and 400 units. Right children? Now if we just talk about the curve. If we talk about the curve. Here children. This is your supply curve. This is your y-axis, which this is going to show you price. Here we are writing price. And this is your x-axis. This is your quantity supplied. Right? So prices are 10, 20, 30 and 40. Price is 10, 20, 30 and 40. Quantity supplied are 100, 200, 300 and 400. Right children? Now at price 10, when the price was rupee 10, there was minimum supply that was of 100 units. So price 10 में the unit supplied was how many? 100. Price 20 में जब price 20 हुआ तो unit supply कितनी हो गई? 200. जब price 30 हुआ तो supply कितनी हो गई? 300. When supply was 40, the price was when the price was 40, the supply was 400. Right? We are going to join. We have joined this line. This is your what? Supply curve. Now, when the price is rising, the supply is also rising. There is a positive relationship between supply and price. Right? When the price was rising, the supply was also rising. So when the price is rising, supply is rising. This is extension. This is what? Extension. When the price is reducing, when the price is 10 or 20, the unit supplied is less by the producer. So this side, this is your what? Contraction. Contraction. Right? We are talking about contraction and extension of what? We are talking about the contraction and extension of supply here. The contraction and extension takes place with the change in the price.
right? So here we can say that in this portion, as the price is increasing, the supply is increasing. This is extension. That's why we have drawn a arrow here. And when the price is decreasing, the supply is decreasing. And this is what? Contraction. Right? I hope this is very, very clear to you. If you want me to draw a separate diagram, I can do that also. I'll draw a diagram separately for extension and contraction. Right? So if I draw two diagrams, when price was 10, we were supplying 100. When price was 20, we started supplying how many? 200. Right? Now, this is what? This is the supply is increasing due to the increase in the price. So, this part will be known as what? Extension. This part will be known as what? Extension. Whereas, if you just talk about this is quantity supplied and this was price. Now, if you see two figure, this is one, figure 2. In this case, we will see when the price was 20, the producer was supplying 200 units, right? This is your P. When the price was 10, P2, when the price was 10, supplier started supplying 100 units. Now in this case, we'll join the point. This is supply curve and the supply is reducing due to the reduction in the price. So this is reduction in quantity supply, so this will be known as contraction. So children, this is contraction and extension. Now there is a question arises, why the producer is behaving in such a manner? Why producer wants to supply more at higher price and less at lower price? The very, very simple reason is the profit margin. Now at higher price, the producer gets more profit margin, that's why he want to supply more at higher price, and at less price the profit margin of the producer reduces, that's why he is interested in supplying less. So this is a extension and contraction, and I hope this is very, very clear to you. Now let's move to the shift. Now always remember, I am just repeating it, movement is of two types, extension and contraction. The reason for the movement is price, and this is how I have shown you extension and contraction takes place. Now we'll do what? Shift. We'll read what? Shift of supply curve. We'll read now shift of supply curve. Now let's do this also. Now again I'll start with it. So two types of shift. These types are increase in demand. This is known as increase in demand. Sorry, supply. We are reading supply. Increase in supply. And second one, decrease in supply. First thing, there are two types of shift: decrease in supply, decrease in supply. And the reason for shift is all other factors other than price. So in this case, the reason is not price. Price is going to be constant in shift. Always remember, price has no role to play in shift. So other factors like we have read the factors affecting supply. Those factors we are talking about here. Goal of the producer, then the number of producers were there, then input prices were there, then state of technology was there. So these all were the factors. So these factors will play a key role out here, and the price will remain constant out here. So this is very, very important point to understand before reading shift. So let's
go through what I have written on the board. Shift of supply curve. There are two types of shift: increase in supply and decrease in supply. We are reading supply right now, so that's why we are going to write increase in supply and decrease in supply. अगर हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ रहे होते तो हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, राइट. अब जो उसका रीजन है वो क्या है, यहाँ पे प्राइस को छोड़ के जितने भी रीजन होंगे वो किसके होंगे, शिफ्ट के होंगे. प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहता है क्योंकि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस का रोल एक्टिव रहता है, वहां बाकी चीजें कांस्टेंट रहती है. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, बाकी चीजें एक्टिव रहेंगी. अब आप बोलोगे बाकी चीजें अगर आपको याद नहीं आ रही तो मैं बता देती हूँ. फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में जो थे चीजें, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई के जो पॉइंट्स थे, अफेक्टिंग सप्लाई, उसमें था आपका नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, गोल ऑफ फर्म, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट policy, then your price of input, future expectations, ठीक है. तो ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स शिफ्ट के कारण होते हैं, ठीक है. यहां पे जो है प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट. There is no role for price to play here, right? So these are the factors: number of producer, goal of the firm, state of technology, government policy, price of input, future expectation. These are the factors which are going to create a shift on the supply curve, right children? So let's try to understand it through with the help of an example. So if you just draw a diagram. So we are reading shift right now. Keep in your mind that we are reading shift right now. So if you just draw a diagram, this is your y-axis, this is your x-axis. Here we'll show quantity supplied. Here I am going to show price, P-R-I-C-E, right? Now, as I've already told you, the price is constant. Keep in your mind that price is constant. So we are going to draw a constant line for what? प्राइस. वी आर ड्रॉइंग अ कांस्टेंट लाइन फॉर प्राइस, क्योंकि प्राइस का यहाँ कोई रोल प्ले करने के लिए है ही नहीं. प्राइस की वजह से कभी भी शिफ्ट होता ही नहीं है. प्राइस बढ़े या घटे शिफ्ट नहीं होता. प्राइस की वजह से सिर्फ एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब मूवमेंट्स होते हैं. अगर हम इसकी बात करें तो अब हमको दिमाग में ये बात रखनी, हमारा दिमाग में फैक्टर होना चाहिए. अब हमारा फैक्टर क्या मान के चलते हैं, मान लेते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को मान लेते हैं. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, इसमें क्या है, अगर प्रोड्यूसर ये मान के चल रहा है कि आने वाले टाइम में कोई सामान सस्ता होने वाला है, तो वो आज की डेट में बहुत सारा माल क्या कर देगा, मार्केट में भेज देगा, ताकि उसका हाई प्राइस में सामान बिक जाए. आने वाले टाइम में प्राइसेस भी क्रैश होने वाले हैं, गिरने वाले हैं प्राइसेस. तो इस केस में क्या हम यहाँ पे दिमाग में रख रहे हैं कि हम यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कहीं शो नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से जो प्राइस सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, वी आर गोइंग टू शो दैट. अगर दिस इज योर इनिशियल, if this was your supply, this is your initial supply, right? This is your initial supply, मतलब शुरुआत का सप्लाई आपका ये था. अब कहीं से पता चला कि प्राइसेस क्या होने वाले, गिरने वाले हैं फ्यूचर टाइम में, तो सप्लाई क्या हो गई, पहले सप्लाई थी 100 यूनिट्स की, अब सप्लाई क्या हो गई 200 हो गई, ठीक है. तो ये मतलब आपका सप्लाई का ऐसा जाएगा. दिस इज S1. तो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी सप्लाई क्यों बढ़ी, सप्लाई यहाँ पे इसलिए बढ़ी क्योंकि प्रोड्यूसर को ये कहीं से फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कैसे न्यूज मिली है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस गिरने वाले हैं किसी चीज के, तो उन्होंने क्या किया, आज इस सामान को हाई प्राइसेस में बेचने के लिए फटाफट से बहुत ज्यादा माल क्या कर दिया, मार्केट में भेज दिया. तो हमारी सप्लाई 100 से कहाँ चलेगी, सीधे 200 चलेगी, मतलब हमारी सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुंच गई. तो दिस इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई, राइट. वेयर इज द प्राइस इज सेम, हियर द प्राइस हैज नो रोल टू प्ले. हियर द प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर्स विल behave. Other factors will affect the increase or decrease in the supply curve. And if you just talk about the another diagram, that is the diagram of decreasing supply. So अगर future expectations की बात करें,
यहाँ पे प्राइस दिखा रहे हैं या क्वांटिटी सप्लाई दिखा रहे हैं। प्राइस हमारा कांस्टेंट है, कोई रोल प्ले करने के लिए नहीं है, तो प्राइस हमने मान लिया कि प्राइस 10 है तो 10 को ही मान लिया, 10 ही प्राइस है। लेकिन यहाँ पे बाकी रोल प्ले कर रही बाकी चीजें, तो मानते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कहीं से ये खबर मिली कि आने वाले टाइम में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आने वाले टाइम में प्राइस अगर किसी चीज के बढ़ने वाले हैं तो अभी प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस सामान के को क्या करेगा, मार्केट पे कम से कम भेजेगा, क्योंकि आने वाले में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो वो आने वाले टाइम में माल को मार्केट में भेजेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। तो अभी क्या कर देगा, माल की सप्लाई को कम कर देगा या रोक देगा, तो इससे क्या होगा, मार्केट में सप्लाई हो जाएगी कम। तो एक्सपेक्टेशन पता चलने से पहले अगर सप्लाई का ये था और बाद में पता चला कि प्राइसेस क्या होने वाले, बढ़ने वाले हैं, तो वो अभी क्या करेगा, सप्लाई को क्या कर देगा, घटा देगा। अगर वो पहले 150 कर रहा था सप्लाई यूनिट्स, तो अभी क्या कर देगा, सप्लाई को घटा के कहा लाने की कोशिश करेगा, कम कर देगा, 50 कर देगा, ठीक है। मान लेते हैं उसने 50 कर दिया, ये हमारा सप्लाई का नया है। इस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई। इस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पे डिक्रीज इन सप्लाई हुआ, ये किस वजह से हुआ, प्राइस की वजह से नहीं, या प्राइस की वजह से नहीं हुआ, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो थी उसकी वजह से हुआ, या यहाँ पे अगर कोई और रीजन ले सकते हो। यहाँ पे प्राइस अभी बढ़ा या घटा नहीं है, यहाँ पे फ्यूचर की बातें की जा रही है। अगर यहाँ पे दूसरा रीजन ले सकते हो तो आप दूसरा रीजन ले सकते हो, वो हो सकता है प्राइस ऑफ इनपुट प्राइसेस। इनपुट के प्राइसेस के बारे में बात करें तो मशीनरी का प्राइस, लेबर का प्राइस। अगर लेबर और मशीन आज की डेट में महंगी हो गई तो आपने क्या किया, आज की डेट में अगर महंगी हो रही तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, क्योंकि लेबर महंगा हो गया। यहाँ पे प्राइस का कोई रोल नहीं, यहाँ पे लेबर के प्राइस के बारे में बात हो रही है, ना कि कमोडिटी के प्राइस के बारे में बात हो रही है। तो ये देखो, तो इस केस में क्या हो गया, डिक्रीज इन सप्लाई हो गया, ठीक है। और अगर हमें पता चलेगा कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, लेबर के प्राइसेस क्या होने वाले हैं, महंगे होने वाले हैं। अगर हमें पता चले कि लेबर महंगा होने वाला है, मशीनरी महंगी होने वाली है, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, इनपुट खरीद नहीं पाएगा प्रोड्यूसर, लेबर नहीं खरीद पाएगा, मशीनरी नहीं खरीद पाएगा, उससे महंगा पड़ेगा। तो क्या करेगा, आज सस्ते में ही, सस्ते लेबर में ही, सस्ती चीजों में ही, मशीन में ही वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाएगा और क्या कर देगा, बाहर सप्लाई बढ़ा देगा। तो उस केस में डायग्राम ऐसे बनेगा। तो दिस इज द डायग्राम फॉर शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व एंड दिस इज द डायग्राम फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज। I hope this is very clear to you. You can go through it for a second. Now, the last topic in your book in lesson number 3, वो हम start करेंगे. And the last topic is exceptions of law of supply. Exceptions of law of supply. Of law of supply. लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है दैट देयर इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। मतलब प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटने पे सप्लाई घटती है, ये लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। लेकिन जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है, जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है, जहां पे प्राइस के बढ़ने पे ज्यादा सप्लाई होती है, प्राइस के घटने पे कम सप्लाई होती है, उल्टा हो रहा है, तो इस केस में प्राइस के बढ़ने पे कम सप्लाई होती है, प्राइस के घटने पे ज्यादा सप्लाई होता है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे फेलियर हो रहा है, फेलियर ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई हो रहा है। तो पहला रीजन क्या है इसका, आपको हम 4 पॉइंट्स पढ़ाएंगे। इसमें पहला है रेयर आर्टिकल्स जो होते हैं, रेयर आर्टिकल्स लाइक ओल्ड कॉइन्स, ओल्ड पेंटिंग्स, ये सारी चीजें क्या है, ओल्ड है, पुरानी है और अब आपको नहीं मिलती है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका प्राइस हाई होने पे भी आप इसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। तो ये आपका क्या है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई है। यहाँ पे प्राइस बढ़ने पे भी सप्लाई नहीं बढ़ती, क्योंकि नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटने पे सप्लाई घटती है। लेकिन इस केस में मतलब जो पुराने आर्टिकल्स, रेयर मतलब जो बहुत कम हो, बहुत ही कम हो, जो मिलते ही ना हो, बहुत मुश्किल से मिलते हो, जैसे कि पुराने समय के कॉइन्स हो गए या पुराने समय की पेंटिंग्स हो गई, तो ये तो पुराने समय की है, तो अब तो बनती नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, आपके इन चीजों के कितने भी प्राइस बढ़ जाए पर इनकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। दूसरा है आपका पेरिशेबल गुड्स, सेकेंड इज योर पेरिशेबल गुड्स।
ठीक है. Perishable goods are those goods whose life is very short. इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, जैसे कि लाइक फ्रूट्स, मिल्क, ये सारी चीजें ऐसी जिनकी सब लाइफ क्या है, बहुत शॉर्ट है. तो इस केस में क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, इसकी प्राइस बढ़ने पे भी बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इन चीजों को रखने की ज्यादा जगह नहीं होती है, या इनके पास घटने में भी वो कई बार क्या करता है, बहुत ज्यादा सप्लाई कर देता है. कई बार इनके प्राइस बहुत घट भी जाते हैं तो भी बहुत ज्यादा सप्लाई कर देता है, क्योंकि इस तरह का सामान जल्दी से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. इस तरह के सामान को रखने की बहुत ज्यादा सुविधा कई बार लोगों के पास, दुकानदारों के पास नहीं होती है, या प्रोड्यूसर के पास नहीं होती है, तो भी वो इसको कम प्राइस पे क्या कर देते हैं, बहुत हाई सप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ भी लॉ ऑफ सप्लाई क्या करता है, फेल हो जाता है. नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के केस में भी क्या होगा, आपके जरूरी नहीं कि हर बार फसल बहुत ही अच्छी हो. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स है जो एग्रीकल्चर से आपको मिलते हैं. कई बार अगर बारिश अच्छी नहीं हुई या फसल में कीड़ा लग गया, तो कई बार कितना भी प्राइस आपका हाई हो जाए, आप सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उस साल आपकी खेतों में फसल हो ही नहीं पाई किसी कारणवश. तो प्राइस कितना भी हो, आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते. तो इस केस में प्राइस बढ़ने पे भी सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है, और प्राइस कई बार प्राइस घटने में भी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है. तो इस तरह के केसेस में भी क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या रहता है, काम नहीं करता है. राइट. एंड द अनदर एंड द फाइनल रीजन इज नीड फॉर मनी बाय प्रोड्यूसर. नाउ एट टाइम्स व्हाट हैपेंस कि प्रोड्यूसर को, सप्लायर को क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तब वो ऐसे केस में माल का प्राइस नहीं देखता है. वो क्या करता है, कितने भी प्राइस में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर देता है, क्योंकि वो सोचता है ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने में उसके पास क्या हो जाएगा, पैसों का इंतजाम हो जाएगा. तो इस केस में ही विल नॉट वेट फॉर द प्राइस टू राइज एंड देन टू सप्लाई मोर. Rather, he will supply at whatever price. He will try to supply maximum amount, because he is in the very much need of money, and he want money, and for gaining that money he is ready to supply whatever number of units at a lower price also. So here also the law of supply fails. So you have these four points where the law of supply does not works, or we call it exception to the law of supply. The first one is rare articles. So rare articles are those articles which are old and ancient, and you don't get those now, because they are rare, they are very old, you don't get them. So at even very high prices you cannot increase the supply of this product. Second, perishable goods. Perishable goods are those goods whose life is very short, like fruits, vegetables, milk products. So in this case, the supply cannot be waited. So we cannot wait the price to rise and then to increase the supply. Rather, we have to supply whatever amount at whatever price, because these are perishable goods. ये सड़ जाएंगे otherwise. अगर आप इनको बेचोगे ही नहीं तो ये सड़ जाएंगे. Next is agriculture products. Agriculture products कई बार क्या होते हैं, खेतों में नहीं हो पाते हैं, कभी खराब बारिश की वजह से, खराब मौसम की वजह से, तो उसमें कितना भी प्राइस बढ़ जाए आप सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि फसल तो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है. एंड द नीड ऑफ मनी बाय द प्रोड्यूसर. लास्ट जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई वो है नीड फॉर बाय द प्रोड्यूसर. जब उसको पैसे की जरूरत पड़ती है प्रोड्यूसर को, तो वो कम से कम प्राइस में भी ज्यादा से ज्यादा माल बेचने के लिए तैयार हो जाता है. So children, these are the exceptions of law of supply, and here we are done with lesson number 3 of economic application, and soon I will be starting with lesson number 4. So we are done with lesson number 3. So complete your notes and send it to me on my personal ID.